शंख नगाड़े ते जिहड़े हॉर्न सी मतलब कि सिंह पहला जिहड़े सी जिहड़े हॉर्न सी ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अलग-अलग जानवर ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾद्य यंत्र ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਥ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵ ਵਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਖ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਏ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब जो हीरो दी एंट्री है वो इस 14वें श्लोक तो एंट्री है भगवद गीता दे विच कि पहले जेडे वैदिक जमाने च बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते सी जोश लियाउण दे लई अज भी ਅਸੀਂ देखते हैं कि जो पंजाब है पंजाब दे विच जिन्ने भी म्यूजिक है जो म्यूजिक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ म्यूजिक ਵਿੱਚ ਨਗਾੜੇ बहुत इंपॉर्टेंट और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ म्यूजिक है वो बहुत ही पैशनेट है और जोश ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ इवन मैं ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ जो पंजाबी लिटरेचर है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा चंडी दी वार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਰਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ ਠ ਡ ਢ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ ਠ ਡ ਢ ਪੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਾੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਸੇਮ ਭੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸ਼ਲ ਹੈ ਸ਼ੰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸ਼ੰਖ ਔਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਸੰਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ भीष्म पितामह ने शंख बजाया वो सिर्फ खुश करन लिए लोगों ਨੂੰ या दुर्योधन ਨੂੰ या उत्साह ਲਿਆਉਣ ਲਈ या ਵੱਧ लेकिन ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ यानी कि संजय ने ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ कौरव ਜਿਹੜੇ ਹੈ या दुर्योधन जो है ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ नहीं या कोई जोश ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕੇ लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ या चांस है अपने ਜਿੱਤਣ ਦੇ और ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ संजय कह रहा है कि भी वो बहुत खुश है वो खुशी चाहे धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहा लेकिन वो समझ गया कि संजय बहुत खुश है कि ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਖੇਤਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੇ ਸਮਵੇਤਾ ਯੁਧਸਵਾ ਮਾਮਕਾ ਪਾਂਡਵਸਚੈਵ ਕਿਮ ਕੁਰਵਤ ਸੰਜਯ कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संजय मैनू दस कि कौरव ते पांडव की कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਦੂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਆਪਣੇ ਤਾਤਪਰਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਜੁਨ
और कृष्ण दोनों सेम प्लेटफॉर्म थे, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म थे। तो बड़ी अजीब जी गल है, मतलब कि इतने संजय जो है वो कृष्ण भगवान के बारे वर्णन कर रहा है, जबकि उहदे बारे उन्होंने बारे पूछा नहीं गया इस बारे क्यों। और इस तो ये पता लगता है कि संजय बहुत खुश है और धृतराष्ट्र इस गल को समझ गया। और सेकंड, इत्थे माधव शब्द का उपयोग किया गया और पांडव यानी कि अर्जुन के बारे क्या गया कि एक होर प्रिंसिपल इत्थे एप्लीकेबल है जिहदे बारे गल कर रहा संजय कि भगवान और उहदे भक्त नूं अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह शक्ति और शक्तिमान नूं अलग नहीं कर सकते, इसी तरह जो भगवान कृष्ण है उन्होंने तो उन्होंने भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता, या एक भक्त को भगवान तो अलग करके नहीं देखा जा सकता। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोनों ही डिवाइन यानी दिव्य स्तर पे हैं। और जिस तरह कोई शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई अग नूं ही मिला सकते हैं, पानी नूं नहीं मिला सकते, यानी कि कोई सेम चीज होगी, सेम उस स्तर की होगी ताही वो मिलणगियां। तो इतने दोनों सेम कैटेगरी दे हैं, मतलब दोनों डिवाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, इस करके दोनों को इकट्ठे नाम बोला गया। जिस तरह एक और है कि जिस तरह कहते हैं ना कि होंठा ते जो है पान दी पीक शोभा दिंदी है और अखां दे विच काजल, जे ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਜਲ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ और लाली जो है ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ शोभा नहीं ਦਿੰਦੇ, क्योंकि दोनों अलग अलग कलर है। होंठ लाल है इस करके उत्थे पान दी पीक ही शोभा देगी और अखां कालियां ने इस करके उत्थे काजल ही शोभा देगा। उसी तरह जो कोई भी अगर भगवान कृष्ण का संग करना चाहता है और कहना कि भगवान मेरे नाल गल्लां करन या मैनू रिस्पॉन्स देन या मैं उन्हों का सानिध्य लेना चाहता, तो उसनों भी उस स्तर पे आना ही पवेगा, नहीं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। रेसिप्रोकेशन नहीं होगी, मतलब कॉन्टैक्ट उदों स्थापित होएगा जदों असी खुद अपने आप को उस लेवल ते स्थापित करांगे। और स्थापित करने भी कुछ प्रोसेस है, साधना है। और इत्थे धृतराष्ट्र जो है मतलब उसने जदों ये पूछा और संजय ने जवाब दिता, संजय ने साफ साफ कहता कि माधव शब्द का उपयोग किया है। और माधव का की अर्थ है? माधव का अर्थ है जो लक्ष्मी दे पति है। यानी संजय कह रहे हैं कि जिथे कृष्ण है या जिथे माधव है उत्थे लक्ष्मी भी है और लक्ष्मी पति भी है और डिवोटी भी है, भक्त भी है। तो इस करके इन्हां दी जिहड़ी जित है वो निश्चित है। तो वो स्टार्टिंग ही कह रहे हैं संजय कि अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसनों ये चीज़ां करनियां पैणगियां कि लक्ष्मीपति दी जिहड़ी है वो सेवा करनी पड़ेगी। जे कोई लक्ष्मीपति की सेवा नहीं करेगा उन्हें सक्सेस नहीं मिल सकती। और दूजे पासे अगर जे तुसी आपां वेखीए कि रावण जो है मतलब अगर भौतिक दृष्टि नाल भी देखिए कि संसार दे विच सक्सेस का मतलब है लक्ष्मी, यानी कि धन संपत्ति पैसा प्रेस्टीज, तो ये सारा लक्ष्मी देवी तो आता है। लक्ष्मी देवी तो जिसनों भू देवी भी कह देते हैं और उत्थे रामायण असीं देखते हैं कि रावण जो है वो लक्ष्मी नूं चाहता है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सीता नूं चाहता है लेकिन राम नूं नहीं चाहता, इस करके उसका नाश जिहड़ा है वो निश्चित है। उसी तरह जो इस संसार दे विच लक्ष्मी नूं तां चाहते हैं लेकिन लक्ष्मी पति नूं नहीं चाहते या उहदी पूजा नहीं करना चाहते, तो उन्होंने सक्सेस नहीं मिल सकती। इत्थे ये फार्मूला भी दस्या होया कि सक्सेस का फार्मूला की है कि सक्सेसफुल संसार दे विच ओही होवेगा जिदे पक्ष दे विच लक्ष्मीपति माधव है। माधव मतलब जो मां लक्ष्मी दे पति। और जिस तरह चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए सी कि ब्राह्मण से, और एक ब्राह्मण जो है वो मतलब गीता पढ़ रहे थे लेकिन वो अनपढ़ सी, उन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता सी, लेकिन उन्हें गुरु ने कहा गीता पढ़नी है, तो गीता खोलदा हो ते उहदे अखां चों हंझू आया। और चैतन्य महाप्रभु सारे उहदा मजाक उड़ाते, कुछ पढ़ना आंदा नहीं फिर भी गीता खोल के बैठे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने जाके पूछा भी तू
तेन पढ़ना नहीं आता, सारे ना मजाक उड़ाते हैं, फिर भी तू गीता पढ़ता है, इस तरह क्यों है? तो उन्होंने कहा भी मेरे गुरु का आदेश है कि तू गीता पढ़, और मैं गीता खोलन लगदा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चित्र महाप्रभु का एक सॉरी भगवान कृष्ण का एक चित्र मेरे सामने आ जाता है कि वो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने हुए, यानी ड्राइवर बने हुए। और मैनू बस ये देख के रोना आता है कि भगवान कृष्ण एक मतलब कि नायक है, मतलब पूरे संसार है, पूरे ब्रह्मांड दे सब कुछ होना तो आया, और उनकी एंट्री जो है मतलब एक हीरो की तरह नहीं है, एक ड्राइवर की तरह है। मतलब इस संसार च अगर देखिए तो हीरो की एंट्री जो है बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ एंट्री किस तरह होगी एज अ ड्राइवर। क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक डिवोटी जो है, एक भक्त जो है, उन्हें खुश करना चाहता है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ स्वीकार ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। मतलब इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ मान लो कि कोई किसी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में बाहर कटेगा, पर ये तो नहीं कहेगा भी मेरे तो सारे ही लांछन लग जाए लेकिन उदा भला हो जाए। ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। मतलब एक क्वालिटी तो भगवान कृष्ण ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ कह रहे हैं कि भी मैं अपनी सारी प्रेस्टीज भी ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, लेकिन मैं एक चीज जो है वो देना चाहता वो है कि मेरे भक्त जो हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ यश फैले, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सब कुछ मिल जाए। तो ब्राह्मण कह रहे कि ये सारा कुछ देख के ना मतलब मैंने रोना आ जाता कि मतलब किन्ने दयालु है भगवान कृष्ण। तो जिस तरह एक साउथ इंडिया च एक टैंपल है गुरुवायूर टैंपल, ਉੱਥੇ ना रेगुलर गुरुवायूर टैंपल ਦੇ ਵਿੱਚ विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो रेगुलर पढ़ाया जाता है डेली। और एक डिवोटी ਉੱਥੇ काफी टाइम पहले ਦੀ ਗੱਲ है रेगुलर ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ रेगुलर सेवा करता ਸੀ, और लेकिन ज्यादा पढ़े लिखा नहीं सी, थोड़ा बहुत संस्कृत वगैरह थोड़ी बहुत आंदी, ज्यादा नहीं आती। तो एक दिन वो गया तो उत्थे कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने वाला कोई नहीं सी, जिहड़े भी उत्थे दे पांडे सी वो कहंदे भी ਅਸੀਂ पूजा च बिजी हैं पर इस सहस्त्र नाम पढ़ना भी जरूरी है, तू पढ़ ले। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ दूंगा, पर उन्हें दस्या नहीं भी मैंने चंगी तरह आंदा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ दूंगा, मैंने कोई प्रॉब्लम। तो उहदे च एक श्लोक है अपरमेय ऋषिकेश पद्मनाभ अमर प्रभु, कि जो कृष्ण है या विष्णु है वो आपर में है, यानी कि वो इंद्रियां तो परे हैं, उन्होंने समझना आसान नहीं। ऋषिकेश है, उन्होंने इंद्रियां जो है वो इंद्रियां ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ पद्मनाभ है। और अमर प्रभु, अमर प्रभु है कि वो प्रभु जो है अमर है, यानी कि वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत नहीं ਹੁੰਦੀ, मृत्यु नहीं ਹੁੰਦੀ। लेकिन ਉਹ ਜਿਹੜਾ डिवोटी ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ अपरमेय ऋषिकेश पद्मनाभ मर प्रभु, वो खा गया, वो पढ़ना नहीं आया। यानी कि जिस तरह जो संस्कृत में देखे ना एस लिखा होता, पुठे पुठे पुठा एस होता, ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਆਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ। और बेचारा उदास हो गया। लेकिन इस गल तो उत्थे जो भगवान विष्णु की जो विग्रह है उन्होंने बहुत दुख, और उन्होंने उस जो पंडा सी तो थप्पड़ लाइया, चपेड़ा लाइया ਉਹਦੇ, मतलब वो भी ਉਹਦੀ भी किस्मत है। मतलब भगवान कृष्ण डायरेक्ट ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं और ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ मैं अमर प्रभु हाँ, क्योंकि अमर प्रभु का एक और मतलब है अमर विष्णु सहस्त्र नाम के बहुत सारे एक नाम के 10-10 मतलब है। अमर प्रभु का मतलब एक है कि प्रभु जो है अमर है। एक होर मीनिंग है अमर प्रभु की वो जो अमर है, यानी देवी देवता उन्होंने स्वामी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो मैं मनदा भी मैं अमर प्रभु हाँ, यानी कि मैं जो इमोर्टल है, जिन्हों की मौत नहीं होती, जो देवी देवता उन्हों का प्रभु हाँ, स्वामी हाँ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਟਲ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਈਟ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਿਸਤਰਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਤन्य चरितामृत ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द जो है ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ मूर्खो वदति विष्णाया धीर वदति विष्णवे कि कुछ जिस तरह कृष्ण शब्द है लेकिन उन्होंने जो संबोधन कर रहे हैं तो वो बनेगा कृष्णाया। जिस तरह आप कहते हैं ओम केशवाय नमः, जो तिलक लाने ओम केशवाय नमः, तो उसी तरह विष्णु जो है जो धीर है, क्योंकि लास्ट में आदि मात्रा नहीं है ऊदी मात्रा है, तो वो बनेगा विष्णवे। ऊ और आ मिलके बनते व यानी विष्णवे। तो जो धीर वदती विष्णवे यानी कि जो विद्वान है वो विष्णवे पढ़ेंगे, लेकिन जो मूर्ख है वो कहना कृष्ण तो कृष्णाय बनेगा, विष्णु तो विष्णाय बनेगा। लेकिन भगवान कृष्ण जो है दोनों ਨੂੰ ही स्वीकार करते देखते हैं कि इत्थे की चल रहा है हार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ जो भगवान कृष्ण है उन्होंने जो एंट्री है वो एंट्री ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ डिवोटी जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ। और सारथी जो है, सारथी बनना एक राजा ਦੇ ਲਈ सारथी बनना, ड्राइवर बनना बहुत ही बेइज्जती वाली गल है। मतलब जे ਅਸੀਂ देखी कि भगवान कृष्ण ने किन्नी सारियां चीजां जित्तियां और किन्ने सारे देवी देवता ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ किन्ने सारे राक्षसों ਦਾ असुरों ਦਾ वध ਕੀਤਾ, लेकिन स्टिल भगवान कृष्ण ਇੱਥੇ सारथी ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। मतलब और सारथी ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ कि सारथी जो है वो जड़ा रथी है, रथी यानी जो मालक है उस तो पहला उठेगा। जिस तरह अज दी भी डेट विच आपां देखिए भी जे किसी ने घर दे विच गड्डी रखी है और ड्राइवर रखा है, नौकर रखा है, ड्राइवर रखा है, तो पहला सवेरे मालक तो पहला उठ के अपनी गड्डी नूं साफ करेगा, उन्हें स्टार्ट करके रखेगा, बिल्कुल टिच करके रखेगा, है ना। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है अर्जुन तो पहला उठते थे और पूरा रथ सजांदे सी, बहुत वधिया तरीके नाल सजांदे सी। और इस रथ नूं देखण दे लई पूरी दी पूरी महाभारत दे विच जिन्हें कौरव और पांडवां दी सेना सी वो जरूर मतलब देखदे सी कि अर्जुन दा रथ आ गया, कितना सोहना सजिया होया, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब अमेजिंग। एक तां उस अग्निदेव ने दिता सी, वैसे बहुत सोहना सी, और अर्जुन दी हाइट 15 फुट सी और वो रथ वैसे भी बहुत वड्डा उच्चा सी और उत्थे एक पताका लगी हुई सी, पताका दे ऊपर हनुमान जी सी। और देख रहे हो कि रथ दे विच की सी। और बाद विच भगवान कृष्ण उन्हां की कहने उन्हों जदों रथी चढ़दा है रथ तां हथ दे के चढ़ांदा है सारथी, जिस तरह ड्राइवर आज दी डेट देखे ड्राइवर कोल बिठा, और भगवान कृष्ण ये ड्यूटीज करदे सी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਹ ਨਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਥੀ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ स्टेयरिंग तो होंदा नहीं सी या वाटरप्रूफ सॉरी साउंड प्रूफ वो भी नहीं होंदा सी। मतलब लड़ाई चल रही है, कोई मर रहा है, कट रहा है, कोई दहाड़ रहा है, जानवरों का शोर है, योद्धा का शोर है और अस्त्र शस्त्र जिन्ने भी चल रहे हैं उन्होंने शोर है। और मतलब लखा करोड़ों के विच लड़ाई हो रही सी, है ना। बहुत ज्यादा शोर सी, बहुत ज्यादा। और इस सारे शोर के विच सारथी का मुंह सामने है, मतलब पिठ है रथी की, और रथी भी सामने देख रहा है। हुण वो किस तरह दसे कि मैं खब्बे जाना है या सज्जे जाना है? तो इसनू दसन दे लई विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण
ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ अर्जुन ਦੇ ਹੱਥ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਚਲੋ ਸੱਜੇ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਸਾਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। मतलब भगवान कृष्ण ने वो सारियां चीजें कीतियां जो एक आइडियल आदर्श सारथी ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ। और इवन मजे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, हिस्ट्री ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਛੱਲੇ ਜਦਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੱਥੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ ਕਮਾਂਡਰ। ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਸ਼ਈਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਲੇ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਛੱਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਹਾਓ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾ ਲਿਆ ਛੱਲੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਛੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਲੇ ਨੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਛੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੇਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਸੈਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਔਨ ਫਾਇਰ, ਸੀਕ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਫੈਨ ਯੋਰ ਫਲੇਮਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਚਾर्य ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਪत्ति ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਈ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਲਕਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਗਦत्त। ਭਗਦत्त ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਦਾ ਚਲਾਵਾਂ। और दूजे दुर्योधन के भगत कौन है। और अर्जुन भी बड़े बड़े योद्धावां नाल लड़ाई कर रहा सी, छोटे मोटे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀ। और भगदत्त ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। और ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ भगदत्त जो है दुर्योधन को उसने कहा कि ਮੈਨੂੰ अर्जुन ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਤਾਂ दुर्योधन ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ भगदत्त ਹਾਂ और ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अर्जुन ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। दुर्योधन ने ठीक है मैं तेन लैके जाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ। दुर्योधन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ अर्जुन ਦੇ ਨੇੜੇ, और उन्हें अर्जुन ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। लेकिन भगवान कृष्ण समझ गए भी गड़बड़ है। और उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा कि ये कौन बंदा कौन है भी तुसी ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। लेकिन भगवान कृष्ण ने ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ और रथ इधर उधर घुमाते रहे। भगदत्त ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। अल्टीमेटली भगदत्त ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। और इस करके शास्त्र कह रहे हैं कि जो दो तिर लड़ाई कर रहे हो, दो बैल आपस में लड़ाई कर रहे हो या दो विद्वान आपस में लड़ाई कर रहे हो तो कदे भी विच नहीं पैना चाहिए। चाणक्य पंडित की एडवाइस है। एंड भगवान कृष्ण कदे इतर ले जाने, कदे इतर, भगत बहुत परेशान हो गया और उसने वो गदा जी भगवान कृष्ण ने चला दी, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ नहीं हो पाया क्योंकि भगवान। और फिर भगत को याद आया कि हम तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर भगवान कृष्ण कहा कि अर्जुन इस भगत ਨੂੰ मार दो, एंड अर्जुन ने उन्होंने तीर ਨਾਲ खत्म कर दिया। और एक और इंसिडेंट सी, करण ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਗ ਅਸਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ अर्जुन और ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ और जा रहे ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ अर्जुन ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ वन ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मतलब भगवान कृष्ण ਦੇ ਨਾਲ मतलब इस तरह ਦਾ ਸੰਗ ਸੀ अर्जुन ਦਾ, मतलब वेरी फॉर्चुनेट। और सैर करते करते ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ और ਉਹ ਬੈਂਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ। और ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵਨ ਸੀ ਖਾਂਡਵ ਵਨ। ਖਾਂਡਵ ਵਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ, ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜस्वी ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। और अर्जुन ने पूछ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ मतलब इस जंगल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ मैं ब्राह्मण हाँ और ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ बहुत ज्यादा खाता, लेकिन मैंने कुछ खाण ਨੂੰ मिल नहीं रहा। बड़ी अजीब जी गल है। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਹਾਂ और मैंने अग्नि खानी है, मतलब लेकिन मैनू अग्नि जो है मिल नहीं रही। कहने भी ये जंगल में खाना चाहना खांडवन, लेकिन मैनू इंद्र जो है खाण नहीं दिंदा। कहने फिर तुसीं कोई होर जंगल खा लो जाके। कहने नहीं, असल विच इस खांडवन दे विच कुछ बूटियां ने, उन्हां नू खाण नाल मेरी जिहड़ी जठर अग्नि है वो ठीक हो जाएगी। असल विच होया किसी की एक श्वेतकी राजा सी, उसने इन्ना ज्यादा घ्यो मैनू खवाता। अग्निदेव कह रहे हैं कि मेरी जो अग्नि वो मंद होगी, मतलब डायसेंट्री हो गई, पेट खराब हो गया मेरा। हुण मैनू ये मतलब दवाइयां खानी पैणगियां और इस खांडव वन दे विच दवाइयां ने ब्रह्मा जी ने कहा वो खावांगा। लेकिन इत्थे एक तक्षक नाग अपनी फैमिली नाल रहिंदा है और वो इंद्र दा दोस्त है, जिस कारण जिहड़ा है भी मैं इसनूं जदों भी खाण लगदा तां उत्थों बारिश हो जाती, मैं खा नहीं सकता। फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं जिहड़ा है तैनूं एक खांडव वन देना, तो इनू खा, मैं बचावांगा। और जदों भी खाण लगे तब भगवान कृष्ण जो इंद्र है उसने अपने बादल वगैरह भेजे, लेकिन अर्जुन ने सारे जिहड़े हैं भजाते उत्थों। एंड फिर उसके बाद खुद स्वयं इंद्र देवता है, लेकिन अर्जुन ने उन्होंने भी हरा दिया। फिर उन्होंने एक पानी की बहुत बड़ी बौछार भेजी, लेकिन अर्जुन ने अपने तीरां नाल वो भी रोक दी, क्योंकि उस टाइम उस लड़ाई नूं लड़न लई असल विच अग्निदेव ने सोमदेव तो रथ लैके दिता और घोड़े लैके दिते। घोड़े जिहड़े हैं वो दिते सी, जस्ट मिनट आई फॉरगॉट, चित्ररथ। कुछ लोग कहते भी चित्ररथ ने घोड़े दिते सी जो अर्जुन दे रथ पे लगे हुए सी, और कुछ कह रहे हैं कि वरुण देव ने दिते सी। एक कंफ्यूजन है मतलब। और अग्निदेव ने रथ दिता सी, और इसके बाद ये जड़ा गांडीव सी, गांडीव जो है वरुण देव ने धनुष भी दिता सी, और तरकश दिते सी दो, जिहड़े कदे खाली नहीं जाते। और ये जिहड़े श्वेत घोड़े हैं जिहदा वर्णन गीता विच आ रहा है, ये चित्ररथ दे दिते हैं, वरुण देव ने। वरुण देव ने गांडीव वन जो है धनुख दिता सी,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਦੇਵ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਔਰ ਇਹੀ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਗ ਅਸਤਰ ਤੇ, ਔਰ ਕਰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸਤਰ ਛੱਡਿਆ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਇੰਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ हर तरफ तो रक्षा करता है। क्यों? कि अर्जुन जो है और दिवस करते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और भगवान कृष्ण सेवा जो है अपने डिवोटी की रक्षा करते हैं। तो जो दिव्य शंख है और जो भीष्म पितामह का शंख है दोनों डिफरेंट है, मतलब दोनों सेम नहीं है। एक घोषणा कर रहा है कि ये कि ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਘੋषणा कर रहा है कि ठीक है तेनों खुश करने लिए, मतलब एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा भगवान कृष्ण जो है स्वामी है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, भगवान गीता च करे मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञान विचेसा, कि सारे प्रयास सारे आइडियाज विफल हो जाएंगे किना दे, असुरां दे। क्योंकि इस संसार दे विच कोई किन्नी ही सक्सेस प्राप्त कर लवे अल्टीमेटली वो डिफीटेड होएगा, उन्होंने सफलता नहीं असफलता ही मिलेगी, चाहे उन्होंने थोड़े टाइम लगेगी वो सफल है। तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सफल होएगा कौन? यह सफलता है कि जेड़ा डिवाइन प्लेटफॉर्म ते है, जो विष्णु दे नाल कनेक्टेड है, वही अल्टीमेटली, और जो विष्णु दी सेवा ले कुछ करता है, वही अल्टीमेटली संसार दे विच खुश रह सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। तो सफल होने लई कामयाब होने लई भगवान कृष्ण दी अर्चना या सेवा या उन्हां दे नाल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और डिवाइन लेवल पे यानी कि दिव स्तर पे होना जरूरी। दिव स्तर पे होने का मतलब है कि भक्ति के प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है। इंटेंशंस प्योर होनी बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं। जब तक इस प्लेटफॉर्म पे असं नहीं आते कि डिवाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे असी भौतिक दृष्टि तो किन्ने ही सक्सेसफुल हो जाइए कामयाब हो जाइए, लेकिन असी हैप्पी नहीं रह सकते। क्योंकि इतने सानू ये भी समझना पड़ेगा कामयाब होने का मतलब की है। जनरली लोग सोचते हैं कामयाब होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा होना या सदा बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होना, नेम फेम है ना, या भोग विलास ऐश्वर्य। लेकिन भगवद गीता एक अलग एंगल देती है। खुश होने का मतलब है हैप्पी होना, हैप्पीनेस को प्राप्त करना। पैसा इकट्ठा करना हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े को बहुत पैसा हो लेकिन परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हो भी बहुत सारी चीज़ें हो। तो हैप्पीनेस का मतलब है कि खुश होना, संतुष्ट होना, मन अपने आप ही संतुष्ट है, हैप्पी। और ये उदों ही प्राप्त हो सकता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि या संजय इत्थे कह रहा है कि सक्सेसफुल वही होएगा संसार दे विच जदों उहदी लाइफ दे विच माधव और पांडव यानी कि कृष्ण और उन्होंने भगत आएंगे, ताही हैप्पीनेस मिलेगी, ताही सक्सेस मिलेगी। उस तो जे वो दोनों नहीं आते या असी उस डिवाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे, तो असी किन्नी ही कोशिश कर लिए। भगवान कृष्ण ने एक लॉ बनाता, जिस तरह ग्रेविटी का लॉ है ना, उस तरह एक लॉ बनाता कि मोग आशा मोग कर्माना। अमोघ होंदा जिहड़ा विफल ना होवे। भगवान कह रहे हैं कि मोग आशा जिन्नियां भी तुहाडियां आशावां ने मोग यानी विफल हो जाएंगे, ना कामयाबी मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। मोग कर्माना मोग ज्ञान, और कर्म भी विफल हो जाएंगे, ज्ञान भी विफल हो जाएगा जे असी उस डिवाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते। तो इत्थे भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दिव्य शंख कौन बजा सकता है?
यानी पांडव यानी अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाया, माधव ने, तो शंख बजाने दे लिए भी दिव्यता चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वृंदावन जाते हैं, वृंदावन एक डिवाइन जो है धाम है, लेकिन सानू डिवाइन नहीं दिखाई दे रहा, सानू तो उत्थे जाके गंदगी दिखाई देती है, लोगों का व्यवहार दिखाई देता है, और चीजें दिखाई देती है। क्यों क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ਅਸੀਂ खुद उस डिवाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ नहीं है, इस करके उस डिवाइन प्लेटफॉर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ relish नहीं कर सकते, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਸ नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ खुद डिवाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ नहीं है, दिव्य स्तर ਤੇ नहीं है। उसी तरह भगवान कृष्ण और पांडव यानी अर्जुन ने, दोनों ने दिव्य शंख बजाए, इसका मतलब है कि वो दिव्य स्तर पे हैं, इसे करके हो सके, क्योंकि असली दिव्य स्तर पे नहीं है, इस करके वृंदावन जो है सानू वृंदावन दिखाई नहीं देता, कुछ और ही दिखाई देता है। और इसी करके श्रील प्रभुपाद ने कहा सी कि वृंदावन नहीं जाना, जाना है तो 3 दिन ले जाओ, इंस्पिरेशन लो, वापिस आओ, अपना लड़ाई करो, यानी कि जो सेवा देती है प्रचार दी, वो प्रचार करो। सो सक्सेस का फार्मूला यही है कि सानू डिवाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और डिवाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सानू जो है भगवान दे कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन बीइंग है, डिवाइन बीइंग कांटेक्ट दे नाल आने ਲਈ सानू जो है इको एक मीन्स है कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ है चैंटिंग, अच्छी चैंटिंग, एक्सक्लूसिव चैंटिंग। ये नहीं कि ਅਸੀਂ जो चैंटिंग करिए, कोई ड्राइविंग करते हुए चैंटिंग कर रहा है, कोई गल्लां करते हुए चैंटिंग कर रहा है, कोई मोबाइल स्क्रॉल करते हुए चैंटिंग कर रहा है, या कोई अपनी जॉब दे जा रहा है, मतलब जॉब दे विच भी चैंटिंग कर रहा है। नो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव टाइम, मैं आ सकता मना, एक्सक्लूसिव टाइम दो, आसक्ति जो अटैच कर थोड़ी किसी को नहीं, नाम ते होनी चाहिए, नाम है रुचि जीवित है वैष्णव सेवा, ਤਾਂ डिवाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ताकि ਸਾਨੂੰ जो डिवाइन ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਚੈਂਟਿੰਗ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੈਂਟਿੰਗ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ अर्जुन जो है, अर्जुन के मन जरा सी जो सुनदा सी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कृष्ण कृष्ण ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। वाज ऑन सच ए प्लेटफॉर्म, डिवाइन प्लेटफॉर्म, मतलब भगवान ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ। लेकिन ਸਾਡੇ नहीं। ਤਾਂ सक्सेस ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। कामयाब मतलब संसार जो ह्यूमन लाइफ है, ਉਹਦੀ सक्सेस है कि इस डिवाइन बीइंग ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ सक्सेसफुल ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਮੋशंस ਹੈ, मोह आशा यानी आशावां ने, कर्म ने, ज्ञान है, एवरीथिंग, हर चीज जो है वो सक्सेसफुल बनी जाएगी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्मॉल टू लार्ज, मतलब लार्ज मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन वो अगर डिवाइन बीइंग ਨਾਲ कनेक्टेड है या ਤੁਸੀਂ डिवाइन बीइंग ਨਾਲ कनेक्टेड हो ਤਾਂ ਉਹ कामयाब है, अदरवाइज वो कामयाब नहीं। तो कामयाब होने का मतलब है कि वो कनेक्शन होना, यही सफलता की कुंजी। श्रील प्रभुपाद अपनी तात्पर्य यही कह रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये किसने